જય જિનેન્દ્ર ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ દ્વારા યુટ્યુબના માધ્યમથી 42 દિવસ ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર ધાર્મિક ક્લાસ અને સ્વાધ્યાયનો લાભ આપ સૌ મેળવી રહેલ છો. ઉપરોક્ત અમારા પ્રયત્નને પ્રોત્સાહન આપવા જ્ઞાનદાન પેટે અગાઉ મળેલ દાન રાશિથી પ્રેરિત થઈ ધાર્મિક ક્લાસ અને સ્વાધ્યાયના હેતુ માટે બીજી નીચે મુજબની દાન રાશિ મળેલ છે. તરુણભાઈ ચિમનલાલ શેઠ વડોદરા તરફથી 11,000 રૂપિયા, ચંપાબેન ચંદુલાલ શાહ બાલીસણા હાલ કાંદીવલી તરફથી 1100 રૂપિયા, પુષ્પાબેન રમેશભાઈ શાહ વડાસણા હાલ ભાયંદર તરફથી 1100 રૂપિયા, સ્વશ્રી સુભદ્રાબેન રસિકલાલ શાહ અમદાવાદ તરફથી 501 રૂપિયા. ટ્રસ્ટ તથા સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. દાન રાશિ આવકાર્ય છે. રોજ પ્રવચન ચાલુ થાય ત્યારે ફોનમાં નોટિફિકેશન આવે તે માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો. ચેનલની સાથે 42 DS ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિરનું ફેસબુક પેજ બનાવેલ છે. ભવિષ્યમાં સંસ્થા સાથે જોડાઈ રહેવા અને બધી ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા આ પેજને લાઇક અને ફોલો કરો. બીજાને પણ આ પ્રોગ્રામની જાણ કરી જોડાવા પ્રેરિત કરવા વિનંતી. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ 42 DS ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પ્રસારિત થનાર 12 ભાવના પરનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી તારીખ 3/6/2020ના રોજ ઓનલાઈન ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. પ્રશ્નપત્ર માટેના ફોર્મની લિંક ફેસબુક પેજ અને યુટ્યુબના માધ્યમથી દરેકને મળી રહેશે. પ્રશ્નપત્ર તારીખ 6/6/2020 સુધી જમા કરાવવાનું રહેશે. પ્રશ્નપત્રમાં 50 પ્રશ્નો હશે. દરેક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ રહેશે. પ્રશ્નપત્રમાં દરેક પ્રશ્નોના વૈકલ્પિક જવાબ આપવાના છે. પ્રશ્નના જવાબ ફરજિયાત આપવાના રહેશે. પ્રશ્નપત્રને સબમિટ કર્યા બાદ તરત જ 100માંથી કેટલા માર્ક્સ મળેલ છે તે તમને જોવા મળશે. પ્રથમ 21 નંબર આવેલા પ્રતિસ્પર્ધીઓને સંસ્થા તરફથી ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. બાકીના પ્રતિસ્પર્ધકો પોતાના પોઈન્ટ્સ જાતે જ જોઈ શકશે. માત્ર 21 પ્રતિસ્પર્ધકોના નામ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. આ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા સમાજના દરેક સભ્યોને વિનંતી છે અને બીજાને પણ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા પ્રેરિત કરવા વિનંતી. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાદ્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણકારિકમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતુ શાસનમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સૌસાહૂણમ. पंच परमेष्ठी भगवान की जय. परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय. कल के प्रसंग में लोक भावना को लेकर के कई सारी चीजें हमारे सामने आई, जिसमें कि बता दिया गया कि इस लोक में भटकते हुए अनादिकाल से इस जीव ने आज तक आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं की, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति नहीं की. वास्तविकता में जब यह जीव समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति करता है, तभी वह उस परमानंद अव्याभास सुख को प्राप्त कर पाता है. एक कदम आज और आगे बढ़ते हैं. 11वें नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ भावना. बोधि शब्द के कई अर्थ होते हैं. जैसे बोधि अर्थात
ज्ञान, ज्ञान सामान्य को भी बोधि कहते हैं। और रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसे भी आचार्यों ने बोधि शब्द से प्रयुक्त किया है। इसी प्रसंग में यहाँ पर मंगत राय जी ने बोधि दुर्लभ भावना लिखी। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। हम इसे पढ़ें, सुने, समझें, चिंतन मनन करें और अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, जिससे हम भी इस बोधि को प्राप्त हो पाएं। इसी मंगल भावना से आइए जनवाणी में निकालिएगा बोधि दुर्लभ भावना। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। इस पंक्ति का एक एक अक्षर समझने लायक है और वास्तव में उस दुर्लभता की बात यहाँ बताई गई है। वह दुर्लभता कहते हैं हमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। दुर्लभ है ये। हम किसी समुद्र के पास बैठे हुए हैं और वहां पर एक कौवा आ गया है और उस कौवे को वहां से उड़ाने के लिए हमने अपनी जेब से एक रत्न निकाला और रत्न जोर से उस कौवे की ओर मारा। वह रत्न कौवे को लगा और छिटक करके समुद्र में गिर गया। अब समुद्र में गिरे हुए उस रत्न को खोजना अति दुर्लभ है। हमने क्या किया? मनुष्य पर्याय जैसी दुर्लभता को प्राप्त करने के बाद में अपने आप को पंचेंद्रिय विषय भोगों में झोंक दिया और है तो कहां जाके गिरे? संसार रूपी समुद्र में जा गिरे। अब बताइए हमें कौन निकाले वहां से? कैसे समझ हमारे अंदर में आए? ऐसे ही घर में रोटी बनानी है, शाम का समय है, रात्रि का समय है, ठंड का मौसम है और हमें ठंडी लग रही है। हमने क्या किया? लकड़ियां लाओ भाई, थोड़ा हाथ सेक लें। तो जो चंदन की महंगी महंगी लकड़ी घर पे रखी हुई थी, वो लकड़ी लेकर के आ गए और उनको अग्नि में झोंक दिया, अग्नि में डाल दिया और उससे हम अपने दोनों हाथों को सेक रहे हैं। आप बताइए क्या ये उचित है? क्या उस छोटे से काम के लिए इतनी महंगी चीजों को खर्च करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए एक मोटी धनराशि, मोटी रकम की जरूरत होती है। उसी प्रकार से ये जो जीवन है, ये जो जीव है, इस जीव के लिए किस प्रकार से वह दुर्लभता प्राप्त होती है, इस बात को
आचार्यों ने अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। लिखा हुआ है, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान। धन रुपया पैसा, कन अर्थात स्वर्ण, कंचन अर्थात गोल्ड, कंचन अर्थात अपने स्टोन, राज सुख राज वैभव, सबही सुलभ कर जान। ये सारी चीजें इस संसार में सुलभ हैं, अर्थात आसानी से थोड़े पुरुषार्थ करने से प्राप्त हो सकती हैं। दुर्लभ है संसार में। इस संसार में यदि कोई चीज दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होने वाली है, मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, तो एक यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अर्थात यथार्थ, यथार्थ अर्थात वास्तविक, अर्थात ऐसा ज्ञान जो भेद विज्ञान रूप में हो, ऐसा ज्ञान जो सम्यक प्राप्ति में कारण बन जाए, ऐसा ज्ञान जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में कारण बन जाए, ऐसा ज्ञान जो छपक श्रेणी आरोहण बनाने में कारण बन जाए, ऐसा ज्ञान, वह केवल ज्ञान जिसको प्राप्त कर ले तो यह जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो वह जो ज्ञान है वही वास्तव में इस संसार में दुर्लभ ज्ञान है। यहां पर कहते हैं कि 4 गतियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। हम कहां कहां इस संसार में भटके नहीं हैं, अर्थात सर्वत्र ही इस जीव का एक बार नहीं अनंतों बार जन्म मरण हुआ है। तो वह दुर्लभता जीवन में किस प्रकार से बढ़ती चली जाती है, वह चीज यहाँ पर कही गई है। आइए बड़े विनय भाव के साथ एक एक पंक्ति का अर्थ अपन सीखते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर। निगोद अर्थात जो वनस्पति कायक होते हैं, वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं। एक तो है प्रत्येक वनस्पति और दूसरी होती है साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति है इसके 2 भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। तो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, जैसे जमीकंद, आलू है, गाजर है, मूली है और भी जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाली सब्जियां, इसको क्या बोलते हैं? ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती हैं। इसके अलावा और भी वनस्पतियां हैं, किसी किसी अवस्था में उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है। तो एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से असंख्यात लोक प्रमाण साधारण वनस्पति हुआ करते हैं। हम पुनः बोलते हैं, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से असंख्यातों अथवा असंख्यात लोक प्रमाण साधारण वनस्पति होती हैं, और एक साधारण वनस्पति के अंतर्गत एक साधारण वनस्पति के अंतर्गत एक साधारण वनस्पति के अंतर्गत अनंतानंत निगोदिया जीवों का निवास होता है। तो ऐसे जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं वो इस संसार में असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, और जो निगोदियां हैं उनके बारे में कहते हैं कि निगोद, नि माने अनंत, गोद माने स्थान, जो अपने में अनंत जीवों को रहने का स्थान दे वह निगोद कहलाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं निगोद 7वें नरक के नीचे है। नहीं नहीं, ऐसा मत मानिएगा। निगोद कहाँ है? तीनों लोकों में
निगोदिया जीव तो हैं ही, पांचों प्रकार के सूक्ष्म स्थावर जीव तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। साथ में नरक के नीचे भी हैं, पूरे लोक में भरे हैं, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से 608 जीव बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो इतर निगोदिया जीव हैं वो अपने रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी निगोद में हैं, कभी और वनस्पति में हैं, कभी निकल के त्रस पर्याय में आ गए, तो ऐसे उनका जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन नित्य निगोद की अपेक्षा कहा जाता है 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो जीव का जो मूल स्थान रहा वो क्या रहा? वो निगोद रहा। हम आप लोग भी अनंत काल तक निगोद में रहे। बड़ी दुर्लभता रही होगी जब वहां से निकल पाए। रेमीचंद स्वामी ने लिखा है, किसी ने प्रश्न किया कि ये जीव निगोद से क्यों नहीं निकल पाता है, तो लिखा है भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। अर्थात वहां पर कलंकित भावों की प्रचुरता रहती है, इस कारण से यह जीव उस नित्य निगोद का त्याग नहीं कर पाता, अर्थात उस नित्य निगोद को नहीं छोड़ पाता है। किस कारण से? कलंकित भाव की प्रचुरता के कारण से, अर्थात संक्लेश के कारण से। आप सोचिएगा, जिसके पास में मात्र एक स्पर्शन इंद्री होती है, आप सोचिएगा जिसके पास में अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञान है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो ऐसा जो जीव है उसके पास भी कलंकित भावों की प्रचुरता है, इसलिए वो निगोद स्थान नहीं छोड़ पाता। फिर भी निगोद से निकलते हैं जीव। निकलना ही है 6 महीने 8 समय में 608 जीव, ये नियम है। तो क्या कहते हैं? दुर्लभ है निगोद से थावर। थावर माने और स्थावर की पर्याय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, तो यहां पर उत्पन्न होना दुर्लभ है। और अगर कोई जीव स्थावर में आ भी गया, कोई बादाम के रूप में आ गया, कोई नारियल के रूप में आ गया, कोई जल का एक के रूप में आ गया, कोई अग्नि का एक के रूप में आ गया, कोई पृथ्वी का एक के रूप में आ गया, ठीक है, वहां बहुत समय तक रहा। फिर वहां से अरु त्रस गति पानी, पानी मतलब जल नहीं, पानी मतलब प्राप्त करना। तो दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। त्रस पर्याय को प्राप्त करना और कठिन है। त्रस किसे बोलते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री, सैनी पंचेंद्री, देव, नारकी, मनुष्य, ये सब त्रस जीव कहलाते हैं। 2 इंद्री जैसे लट, 3 इंद्री जैसे चींटी, 4 इंद्री जैसे भौरा, पंचेंद्री हम सब। तो त्रस पर्याय को प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन होता है। आप सोचिएगा, हमारे आपके द्वारा दिन भर में ना जाने कितने त्रस जीव मारे जाते हैं। जब हम कहीं गाड़ी से आते जाते हैं, या हम अनछने पानी से स्नान करते हैं, या फिर हम बाजार में होटलों में बना हुआ अभक्ष भोजन करते हैं, और भी ना जाने व्यापार करने में अनेक अनेक कारणों से हमारे द्वारा उन त्रस जीवों का घात होता है। आचार्य कह रहे हैं स्थावर से त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है, और उस दुर्लभ जन्म को जिसने प्राप्त किया है वो हमारे पैरों तले रुंध करके मर जाता है। तो हमारे अंदर में भी थोड़ा जीव दया का भाव होना चाहिए। अब क्या हुआ? अब ये हो गया त्रस पर्याय की प्राप्ति हो गई।
त्रस पर्याय में भी हम मनुष्य बन पाए, क्योंकि नारकी जीव भी त्रस जीव कहलाता है, वहां असहनीय वेदना है। त्रियंचों में भी गाय, बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर, कुत्ता, शेर, चीता, कितने सारे नाम मिल जाएंगे आपको। ये सब भी त्रस कहलाते हैं, सैनी पंचेंद्री कहलाते हैं। इस प्रकार से भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी देव, ये भी सब सैनी पंचेंद्री कहलाते हैं। वैमानिक देव, वैमानिक देवों में इंद्र भी होते हैं। तो आचार्य कहते हैं नर काया को सुरपति तरसें। सुर माने देव, पति माने स्वामी, जो देवताओं का स्वामी है। तो नर काया को सुरपति तरसें, अर्थात जो इंद्र है, इंद्र भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरसता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? जिसके पास में असीम वैभव है, जिसके पास में इतनी देवांगनाएं हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से, 8 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जिसका जीवन चलता है, ऐसा वह जो इंद्र है, उसके पास कौन सी कमी है? कमी तो है, बस वो कमी की पूर्ति मनुष्य ही पूरी कर सकता है। तो नर काया को सुरपति तरसें, देवता भी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। सो दुर्लभ प्राणी, वो जो मनुष्य पर्याय है, वो मनुष्य पर्याय इस संसार में सबसे दुर्लभ कही जाती है। एक बार की चर्चा, एक मुनि महाराज जी ने कहा कि हम वैराग्य भावना पढ़ते हैं, उसमें पंक्ति आती है कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो उनको ये पंक्ति पढ़ करके वैराग्य आ गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। उनके अंदर में क्या भाव आया? जैसे कि तीर्थंकर हैं या फिर चक्रवर्ती हैं, तो चक्रवर्ती के पास किस बात की कमी है, तीर्थंकरों के पास में किस बात की कमी है? उनका आज महल देखिए, सर्वोत्तर भद्र महल, उनका महल देखिए नंद्यावर्त महल, उनके महल में कोई कमी नहीं। उनके पास स्वर्ण आभूषण लबालब भरे हुए हैं, उनके पास एक से एक वस्त्र देवताओं के द्वारा आते हैं, देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ भोजन उन्हें मिलता है, रानियां हैं, सारे ठाट बाट सब कुछ उनके पास में है। चक्रवर्ती के पास में भी किस बात की कमी है? उसके बावजूद भी इन महापुरुषों ने अपना घर परिवार छोड़ करके दीक्षा ले ली। वे महाराज बोले कि भाई चक्रवर्ती हैं या तीर्थंकर हैं या और भी राजा महाराजा हैं और भी महापुरुष हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा ली है, वे हमसे आपसे तो बुद्धिमान ही थे, हमसे आपसे तो समझदार ही थे वो। भाई तब तो उन्होंने समझा, भाई समझदार हमसे आपसे ज्यादा थे तो उस बात को समझ पाए कि घर परिवार में रह करके सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। घर परिवार में रह करके हम आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, घर परिवार में रह करके हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझ में तो आई होगी, तब तो उन्होंने घर छोड़ा ना। जब उन्होंने इतना वैभव त्याग दिया है और हमसे बुद्धिमान है और त्याग दिया है, तो हम तो उनसे बुद्धू है ना, हमारे पास तो ऐसा वैभव भी नहीं है। यदि अगर हम सब त्याग करके मुनि बन जाएं तो शायद हम भी अकलमंदी वाला काम करेंगे। उनकी बात सुन करके लगा कि हाँ, इनका वैराग्य वास्तव में दृढ़ वैराग्य है और ये भव्य आत्मा अपना कल्याण जल्दी करेगा। तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ है, क्योंकि इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। आगे लिखा हुआ है उत्तम देश, देश माने स्थान, स्थान कैसा? उत्तम देश,
मनुष्य पर्याय में जन्म तो हो गया है ना, लेकिन जन्मे कहां पर? जन्मे जापान में, जन्मे चीन में, जन्मे इटली में, जन्मे पाकिस्तान में, और भी देशों के नाम आप ले सकते हैं। अथवा भारत में भी जन्मे तो ऐसे स्थान पे जन्मे जहां जैन धर्म दूर दूर तक कोई नहीं जानता, कोई उसके मर्म को नहीं समझता। तो उत्तम देश, सबसे पहले तो उत्तम देश मिल जाए, अर्थात ऐसी जगह जन्म हो जहां मुनि महाराजों का आना जाना रहे, ऐसी जगह जन्म हो जहां पर जिनालय हम बिना पराधीनता के मंदिर जा सके, अर्थात ऐसे स्थान पर जन्म हो कि मंदिर जाने के लिए किसी की अधीनता ना स्वीकार करनी पड़े, हाथ में चावल लेकर के और नंगे पैर मंदिर जा सके, ऐसे स्थान पे हमारा जन्म हो। तो उत्तम देश मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लोग तरसते हैं मंदिर जाने के लिए, गुरुओं के दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। कई बार बात होती है कई बार लोगों से, कहते हैं हमारे गांव में मंदिर तो है लेकिन 5 मील दूर जाना पड़ता है, पराधीन है, कोई ले जाने वाला नहीं है हमें। कई बार मुनिराज आते हैं लेकिन हम अपने घर पे उनके लिए आहार नहीं बना पाते, हम चौका नहीं लगा पाते। ऐसे भी लाखों घर होंगे जहां पर आज तक दिगंबर मुनिराज के चरण नहीं पड़े, इस भारत में भी। आप सोचिएगा, कहते हैं अगर घर पे मुनिराज के चरण नहीं पड़े, मुनिराज को आहार दान नहीं कराया तो घर शमशान के समान है वो। तो मेरा जन्म, मुझे ऐसा स्थान मिले, ऐसा मुझे घर मिले जहां मैं पैदल मंदिर जा पाऊं, जहां मुनि महाराज हमारे यहाँ पर आराम से आ सकें, उनको हम आहार दान दे पाए, ऐसा देश मुझे प्राप्त हो। फिर कहते हैं सुसंगति, हमें संगति अच्छी मिले। बहुत मुश्किल होता है गुणवानों की संगति मिल जाए, धार्मिक पुरुषों की संगति मिल जाए, संगति ऐसे लोगों की मिले जो कि हमें धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहे। कभी हम धर्म से नीचे गिरने लगे, कभी धर्म से दूर होने लगे, तो हमारा कोई स्थितिकरण करने वाला मिल जाए, हमें सहारा देने वाला मिल जाए, ऐसा कोई साधर्मी या जीवन साथी या हमारे समाज में ऐसे लोग हों। अगर कोई समाज में विचलित हो रहा हो तो हमें धर्म में लगा दे। ऐसे साधुओं की संगति, ऐसे किसी विद्वानों की संगति, ऐसे किसी पंडितों की संगति, ऐसे किसी महापुरुष की संगति हमें मिलती रहे, समझिएगा हमारा अहोभाग्य है। उत्तम देश, सुसंगति, फिर दुर्लभ श्रावक कुल पाना। फिर आप देखो, हमारा जन्म मंदिर के पास हो गया, ऐसे स्थान पे हमारा जन्म हो गया जहां पर, जिस स्थान पे मुनिराजों का आना जाना होता है। जन्म तो हमारा हो गया, लेकिन हमारे ऐसे भाव बन जाएं, हमारे परिवार के ऐसे भाव बन जाएं, हमारे परिवार में कोई व्रती श्रावक हो, कोई प्रतिमाधारी हो, जिसके दर्शन करके, जिसको देख करके हमें इस बात की प्रेरणा मिलती रहे कि हम भी आपके समान व्रती बनेंगे, हम भी 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा के व्रत लेंगे, हम भी अपने मानव जीवन को सफल बनाएंगे। तो एक तात्कालिक आदर्श हमारे आसपास होना चाहिए, जिसको देख करके हम प्रेरणा लेते रहें और भविष्य में ऐसा भाव बन जाए कि हम भी उन व्रतों का पालन करते हुए अपना जीवन जी पाए। क्या कहते हैं? उत्तम देश, सुसंगति, श्रावक कुल पाना, ये चीजें आगे आगे दुर्लभ हैं। और श्रावक का कुल प्राप्त हो गया और हमारे मन में भाव नहीं होते हैं कि हम भी शुद्ध भोजन करें, हम भी सात्विक जीवन जिएं, हम भी त्याग के साथ जीवन जिएं, हम भी सामायिक कर पाएं, हम भी व्रती बन पाएं। तो कम से कम ऐसे कुल में पहले जन्म तो हो जाए। और कदाचित जन्म हो गया, अब क्या भावना आपकी है?
तो कहते हैं ऐसे श्रावक कुल में जन्म लेने के बाद में दुर्लभ सम्यक, अर्थात ऐसे परिवार में जन्म ले लिया जहां पर माता पिता व्रती हैं, कहो तो दादाजी व्रती हैं, कहो तो ताऊ जी भी व्रती हैं, कहो तो चाचा जी भी व्रती हैं, तो ऐसे कुल में हमारा जन्म हो गया। तो हम उन सबको देख करके, भगवान के मंदिर को दर्शन करके, उन गुरुओं के दर्शन करके, मां जिनवाणी का स्वाध्याय करके दुर्लभ सम्यक, अर्थात मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, बहुत दुर्लभ है। और कदाचित 7 तत्वों का श्रद्धान कर लिया, कदाचित सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था आ गई, कदाचित स्वपर भेद विज्ञान की तरफ हमारी ललक जागृत हो गई कि हम भी भेद विज्ञान कर पाएंगे, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बात भगवान के दर्शन करते करते समझ में आ गई। वे भगवान मंदिर की वेदी में विराजमान हैं, वो भगवान की मूर्ता, वो बीतरागता, वो अपरिग्रह, वो अहिंसा का उपदेश देने वाली भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके हमारे अंतरंग में भी जैन धर्म के प्रति ऐसी आस्था जागृत हो गई कि हमने भी उस अहिंसा को, उस अनेकांत को, उस अपरिग्रह को अपने जीवन में अपना लिया और 7 तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धान दृढ़ हो गया और मजबूत हो गया। तो आचार्य कहते हैं उस सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त कर लिया, जिस सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर इस जीव का अनंत काल छिद करके अर्थ बुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। ऐसा क्या दुर्लभ सम्यक, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। ये सम्यक दर्शन ऐसा रत्न है जो इसे एक बार प्राप्त कर लेता है, समझिएगा उसका मोक्ष का टिकट पक्का हो गया। इस भाव में ना सही, अगले भाव में, अगले भाव में, अगले भाव में वो कभी ना कभी समस्त कर्मों का क्षय करके परम पद निर्वाण को प्राप्त होगा ही होगा। वो दुर्लभता हमें प्राप्त हो, ऐसी सद्भावना हमें भानी चाहिए। और जिन्हें यहां तक की दुर्लभता प्राप्त हो गई है उन्हें धर्म के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ा करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कहते हैं दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं और व्यापार है, सब कुछ करना पड़ रहा है, सारा काम करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब क्या है, थोड़ा संयम धारण कर लो, थोड़ा त्याग कर लो। हाँ साहब रात्रि भोजन का त्याग है, हाँ साहब पानी छान के पीते हैं, हाँ साहब रोज मंदिर जाते हैं, सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है। इतने से काम नहीं चलेगा। तो 3 गुण पालन किए हैं, वो तो जैनियों के चिन्ह है। वो तो 7 व्यसन का त्याग किया है, वो तो सदाचरण है। वो 6 आवश्यक कार्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना आदि। इनसे व्रती नहीं कहलाते, इनसे पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा। पंचम गुण स्थान की प्राप्ति करना दुर्लभ है। वो दुर्लभता क्या है ये तो बताइए। तो आचार्य कहते हैं कम से कम 1 प्रतिमा अथवा 2 प्रतिमा का पालन प्रारंभ हो, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों को पालन करने का भाव हमारे अंदर में आ जाए, हम भी व्रती बन जाएं, हम भी तीनों टाइम सामायिक कर पाएं, हमारे द्वारा जीव हिंसा ना हो, मैं झूठ ना बोलूं, मैं चोरी ना करूं, मैं स्वदार संतोषी बनकर जीवन जीऊं, मेरे परिग्रह की मर्यादा हो जाए, जीवन भर 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा हो जाए, अनर्दंड का त्याग कर दूं, अष्टमी चतुर्दशी एकासन उपवास कर पाऊं और त्याग के साथ जीवन जी पाऊं, भोगो भोग की चीजों की मैं मर्यादा कर पाऊं। ऐसे बहुत सारे संकल्प जब हमारे जीवन में आ जाते हैं वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य पर्याय की। उसे कहते हैं कि दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, अर्थात पंचम गुण स्थान हमारा बन जाए। आचार्य कहते हैं
सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, उसके बावजूद भी अभी जीवन भर असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी। लेकिन जो जीव उस पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, व्रती बन जाते हैं, उनके जीवन भर चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा जीवन भर होती रहती है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हम सबका यही है, कर्मों की निर्जरा करें और करते करते समस्त कर्मों की निर्जरा करके हम परम पद अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लें, यही हमारी भावना है। और इतना ही नहीं, पंचम गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद में अंत में मुनि महाराज बन पाए और किन्हीं आचार्य के, किन्हीं मुनिराज के सानिध्य में हमारी वह दुर्लभतम जो समाधि है, वो समाधि हमारी हो पाए, वो दुर्लभता हमारे जीवन में आ पाए। समझिएगा, हमने अपनी पर्याय को सफल बना लिया। आचार्य लिखते हैं, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उच्च कुल, देव शास्त्र, गुरु का सानिध्य, ये सारी जो हमें बाहरी विभूति प्राप्त होती है, ये सारी विभूति आत्म कल्याण के लिए है, ये सारी विभूति भगवान बनाने के लिए है। अर्थात मनुष्य पर्याय की प्राप्ति पंचेंद्रिय विषयों को भोगने के लिए नहीं होती है, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हमें भगवान बनने की शिक्षा प्रदान कराने के लिए होती है, और हम भगवान बन पाए इसलिए होती है। क्या लिखा हुआ है? दुर्लभ रत्नात्रय आराधन। रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नात्रय बोलते हैं। आप बोलेंगे इसका नाम रत्नात्रय क्यों है? ये रत्न है, रत्न, रत्न क्यों है? ये कहा गया है जैसे लौकिक में हमारे पास रत्न हो, उन रत्नों के माध्यम से इस संसार की कौन सी विभूति है जो हम खरीद नहीं सकते। अर्थात हमारे पास रत्न होंगे तो हम संसार का हर एक वैभव खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमें मिल सकता है, मिल जाता है। आपको आलीशान महल चाहिए, आपको पंचेंद्रिय भोग सामग्री चाहिए, आपको सुंदर वस्त्र चाहिए, आपको आभूषण चाहिए। यदि हमारे पास बेशकीमती रत्न है, संसार का हर वैभव खरीद लेंगे। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन ऐसे गुण हैं, इन गुणों को रत्न कहा गया है। इन गुणों की प्राप्ति जिन्हें हो जाती है, वे जीव भगवान बन जाते हैं, वे जीव अरिहंत बन जाते हैं, वे सिद्ध बन जाते हैं। अर्थात ये तीन गुण ऐसे गुण माने जाते हैं, ये जिनके पास में हो वे आत्मा के समस्त गुणों को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए रत्नात्रय की दुर्लभता हमारे समझ में आनी चाहिए। दुर्लभ है। आप सोचिएगा, यदि हम पूरे विश्व की बात करें, इस पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या है? तो 700 करोड़ की जनसंख्या है लगभग इस विश्व की। लेकिन वर्तमान में हम देखें, इन 700 करोड़ के बीच में कितने मुनि महाराज हैं? संख्या 1000 भी नहीं हो पाएगी साहब। 700 करोड़ में 1000 भी नहीं है मुनि। दुर्लभता है कि नहीं? हाँ, दुर्लभता है। इसलिए लिखा यहां पर दुर्लभ रत्नात्रय आराधन। पहले तो गृहस्थ सावक बन के, प्रतिमाधारी बन के अथवा अव्रती रहते हुए इस प्रकार का भाव मेरे अंदर में आ जाए, मुझे मुनि महाराज बनना है, मैं भी दिगंबर बनूंगा, मैं केसलुंच कर सकता हूं, मैं पैदल विहार कर सकता हूं, ठंडी गर्मी भूख प्यास परिसहों को मैं सहन कर सकता हूं, मैं शरीर श्रृंगार नहीं करूंगा, स्नान नहीं करूंगा। पहले इस प्रकार की भावना बन जाए कि मैं मुनि महाराज बन पाऊं। आज तो अंदर में भावना नहीं बन पाती, बनने की बात तो छोड़िए आप, कम से कम भावना तो करें। अभी नहीं बन पाएंगे, अगले भाव में, अगले भाव में, अगले भाव में कभी तो हमारे द्वारा भाई गई ये भावनाएं फलीभूत हो पाए। इसलिए आचार्य कहते हैं, मंदिर जाओ,
एक बादाम तो चढ़ाओ इस नाम से, एक बादाम भगवान के सामने चढ़ाओ। हे भगवान, मैं भी मुनिराज बन पाऊं। हे भगवान, मैं भी आरिका माता बन पाऊं। हे भगवान, मेरा इस पर्याय में समाधि पूर्वक मरण हो, उस संकल्प के लिए मैं एक बादाम आपके चरणों में समर्पित करता हूं, रोज करता रहूंगा। किस लिए? उन गुणों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जैनी जैसा कोई भगवान दूसरा नहीं है, जिसके पास न राग है न द्वेष है और संपूर्ण ज्ञान है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। संपूर्ण वीतरागता है, जहां पर उनकी पूजा करो तो वो खुश नहीं होते और पूजा ना करो तो वो नाराज नहीं होते। ऐसे प्रभु के आराधक हम हैं, उनके सामने एक बादाम चढ़ाओ कम से कम, इस भावना से मैं मुनि महाराज बनूं। आचार्य कहते हैं दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, रत्नात्रय की आराधना करना बहुत दुर्लभ है। और दीक्षा का धरना, दीक्षा हो जाए, क्षुल्लक जी ही बन जाएं, ऐलक जी ही बन जाएं, क्षुल्लिका बन जाएं, आरिका बन जाएं, मुनि महाराज बन जाएं, एन केन प्रकारेण हमारे हाथ में वो पिच्छिका आ जाए, ये भावना है। एक माँ अपने घर में पिच्छिका रखती थी। उन्हें मिली होगी कि नहीं पुराने मुनिराज की, जिस समय पिच्छिका परिवर्तन होता है उस समय, तो वो माँ क्या बोलती, रोज उस पिच्छिका का अपने घर पे बड़े खुश होकर के स्पर्श करती और कहती, तू मेरे हाथ में कब आएगी, मेरे हाथ में कब आएगी, मेरे हाथ में आ जा, मेरे हाथ में आ जा, मैं भी आरिका बनूंगी, मेरे हाथ में आ जा। ऐसे वो माँ रोज करती थी। समय बीतता गया, समय बीतता गया, कहते हैं 40 साल तक उसने भावना भाई। और फिर जब उसका बहुत उम्र उसकी हो गई तो उसे एक मुनिराज का संघ मिला और उसने सारा परिग्रह त्याग करके उन मुनिराज के संघ में आरिका दीक्षा ले ली। बहुत समय तक उनके साथ में रही और फिर बाद में बहुत अच्छी उनकी संलेखना हुई। तो ये भावना कहलाती है। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सुबह भावना भाई और शाम की दीक्षा लेने चले जाएं। कम से कम अपने घर में भावना तो भाएं कि हम भी ऐसे पद को प्राप्त हों, हम भी त्याग कर पाएं, इस दुर्लभता को हम भी पाएं, जिससे हमारा जीवन भी मांगलिक और उत्तम बन पाए। क्या कहते हैं? दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन। मुनिवर के व्रत पालन, आप सोचिएगा, श्रावक के व्रत तो पाल लिए, 12 व्रत होते हैं। मुनिराज का 13 प्रकार का चारित्र होता है, जिसमें 5 महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती हैं और 3 गुप्तियां होती हैं। ये 13 प्रकार का चारित्र किसका होता है? मुनि महाराजों का होता है, अथवा उनका जो चारित्र है उसे हम बोलते हैं साधु परमेष्ठी हैं तो 28 मूल गुणों का पालन करना, आचार परमेष्ठी हैं 28 के साथ 25 और गुणों का पालन करना, और आचार परमेष्ठी हैं तो 36 मूल गुणों का पालन करना। ऐसे आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी ये तीनों मुनि महाराज कहलाते हैं, रत्नात्रय के धारी होते हैं। ज्यों ज्यों इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों इनका संयम, इनकी साधना और दृढ़तर होती चली जाती है। ऐसे महामुनिराजों के दर्शन करके हमें भावना भानी चाहिए, हम भी उनके समान गुणों को प्राप्त कर पाएं। कब मेरा जीवन ऐसा पावन हो पाएगा कि मैं भी साधु बन पाऊंगा, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। अपने बारे में अवश्य ही ये विचार करना चाहिए और अपने अंदर में साहस बनाना चाहिए कि हम भी इन व्रतों के पालन करने में दृढ़ हो पाएंगे। क्या लिखा है? दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। और मुनि महाराज बनने के बाद में करना क्या है? अपने भावों को विशुद्ध करना है और विशुद्ध करना है और पवित्र करना है। अंतरंग तक पवित्रता अपनी बन जानी चाहिए। अर्थात आचार्य कहते हैं 10 धर्मों में
संयम धर्म आता है, तप धर्म आता है, त्याग धर्म भी आता है। तप धर्म क्या हुआ? इच्छाओं का निरोध करना। संयम क्या हुआ? मुनि महाराज बन गए। फिर त्याग क्या हुआ? मुनि महाराज बनने के बाद में जो आपने बाहर के सारे पदार्थों का, परिग्रह का जो त्याग किया है, तो त्यागी हुई वस्तु का जो अंदर में ममत्व बैठा हुआ है, उस ममत्व का भी त्याग कर देना कि जो मैंने त्याग किया है उसकी चर्चा अब मेरे मुख से नहीं निकलेगी। जैसे कोई गृहस्थ हैं और वो मुनि महाराज बन गए। अब मुनि महाराज बनने के बाद में उन मुनिराज के मुख से अपने जीवन की कोई भी ऐसी घटना जो रागवर्धक है वो नहीं निकलनी चाहिए। अर्थात परिग्रह की बात, पैसे की बात, स्त्री की बात और अपने बच्चों की बात उन मुनिराज के मुख से नहीं निकलनी चाहिए। जिस परिग्रह को, जिस स्त्री को, जिस धन संपत्ति को उन्होंने त्याग दिया है, वो सब मल के समान हो जानी चाहिए। जैसे मल का त्याग करने के बाद में वहां दृष्टि नहीं जाती है, उसी प्रकार से मुनि महाराज बनने वाले उस जीव के अंदर में उसने जो बाहरी सारी चीजों का त्याग कर दिया है, तो त्यागी हुई सारी वस्तु उसके लिए मल के समान हो जाती हैं। उसे अब करना क्या है? अपने भावों को शुद्ध करना है, अपने अंदर की ओर देखना है, बाहर कहीं भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यही वास्तव में दुर्लभता कहलाती है। इतना ही नहीं, आचार्य महाराज एक कदम और आगे हमें बता रहे हैं, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। आप सोचिएगा, मुनि महाराज बन गए, अभी भी तसल्ली नहीं मिली, और क्या त्याग करवाना चाहते हो? तो मुनिराज तो बन गए हैं, अब हम क्या करें? अब अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाओ। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। चेतन मतलब हे आत्मन, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। अर्थात मुनि महाराज बन करके लाखों करोड़ों लोग फेल हो जाते हैं। मतलब मुनिराज क्यों बनते हैं? कर्मों का क्षय करने के लिए। मुनिराज क्यों बनते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और ऐसे अरबों खरबों लोग हुए, मुनि महाराज बन गए, और उस पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उसके पहले ही आयु कर्म समाप्त हो गया। आप बताओ कहां जाएंगे वो? कहां जाएंगे? देव गति में उनका जन्म होगा, वैमानिक देवों में जन्म होगा। उनका एक भाव बढ़ गया ना, फिर वहां पर देव पर्याय में आयु भोग करके फिर मनुष्य बनेंगे, और उनके मुनि महाराज के संस्कार नहीं छूटे, उस भाव में वो पुनः मुनिराज बन सकते हैं। बने कोई जरूरी नहीं है, बन सकते हैं अगर संस्कार दृढ़ रहे तो। फिर तपस्या करी और मुनिराज बन के तपस्या करी और तपस्या करी, कदाचित सारे कर्मों का क्षय नहीं कर पाए और फिर आयु पूरी हो गई तो पुनः देवगति में जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। यहां पर बोधि ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। तो ऐसे कई कई बार मुनि महाराज बन करके इस जीव ने देवगति की प्राप्ति की, अर्थात सप्लीमेंट्री आ गई। जाना था मोक्ष, चले गए स्वर्ग। फिर क्या हुआ? फिर कभी देव पर्याय से आए, मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ, मुनि महाराज बने। इस बार तो हम दृढ़ रहेंगे, बिल्कुल तपस्या जल्दी करनी है। क्यों? बहुत लंबी तपस्या करेंगे तो फिर आयु पूरी हो जाएगी, फिर स्वर्गों में जाना पड़ेगा, फिर संसार बढ़ जाएगा हमारा। तो इस बार तो तपस्या पक्की करनी है। ऐसी पक्की तपस्या भगवान ऋषभ देव ने की, मुनिराज बन करके 1000 वर्ष तक और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वैसी तपस्या मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन की और 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।
वैसी तपस्या नेमिनाथ भगवान ने 56 दिन की, पार्श्वनाथ भगवान ने 4 महीने की, महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए। तब जाकर के उस बोधि की प्राप्ति हुई जिसका नाम है केवल ज्ञान। इसलिए आचार्य कहते हैं मुनराज बन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये दुर्लभ में भी दुर्लभ क्षण हुआ करते हैं। इसलिए लिखा है दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। बोधि ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सकल परमात्मा बन गए, अरिहंत परमेष्ठी बन गए, बीतरागी हो गए, हितोपदेशी हो गए, उनकी वाणी खिर रही है, तो उन्होंने अनंत प्राणियों का कल्याण करने वाली परम उपकारी दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोगों को उपदेश दिया। वो तो भगवान बने ही, और न जाने कितने लोगों को भगवान बनने की शिक्षा उन्होंने भगवान बनने के बाद दे दी। लोग कहते हैं जैनियों का भगवान कुछ नहीं करता, हम कहते हैं जैनियों का भगवान जो करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता। अर्थात और लोग तो कहते हैं मुझ में समा जाओ, भगवान मैं ही हूं, मुझ में समा जाओ मेरी भक्ति करके। लेकिन जैनी का भगवान कहता है मैं भगवान बन चुका हूं, मेरे बताए रास्ते पे तुम भी चलो, तुम भी भगवान बन जाओगे। अर्थात जैनी का भगवान वो कुर्सी नहीं है जिस पर दूसरा नहीं बैठ सकता। जैनी का भगवान वो है, कहता कि 45 लाख योजन प्रमाण का स्थान है सिद्ध शिला में, एक नहीं दो नहीं, अनंत अनंत परमेष्ठी वहां पर विराजमान है, तुम भी तपस्या करके हमारे समान बन सकते हो। ऐसी प्रेरणा, ऐसा उपदेश, ऐसा धर्मोपदेश, ऐसी दिव्य ध्वनि भगवान के माध्यम से हमेशा गिरती है, जो दूसरों को भी भगवान बनाने का उपदेश दिया करती है। इसलिए कहते हैं दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। जिसने उस बोधि ज्ञान की प्राप्ति कर ली, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे, फिर उनका 4 गतियों का चक्कर छूट जाता है, पंच परावर्तनों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, पंच इंद्रिय विषयों से रहित हो जाते हैं, अष्ट गुणों से संपन्न हो गए, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए, अपने जीवन को उन्होंने मंगलमय बना लिया, ऐसा मंगलमय बना लिया कि बस अब उन्हें संसार में किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। उनके ज्ञान में लोकालोक के चराचर समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें किसी चीज की कोई चाह नहीं होती है। अनंत काल तक अपने आत्म स्वरूप में लीन रहेंगे और उनके ज्ञान में सारा लोक प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन बीतरागता ऐसी आ गई कि किसी भी पदार्थ को देख करके अंतरंग में राग भाव उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी वह परम बोधि, वह केवल ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, ऐसी हम बार बार वीर प्रभु से भावना करते हैं। दुर्लभता ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी दुर्लभता हम सभी को प्राप्त हो गई है। हम उससे और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, अपने जीवन को त्यागमय बनाएं, अपने जीवन में कषाय भाव कम रहे, अपने जीवन में धर्म की उन्नति हो और समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति हो। ऐसी भावना रोज भानी चाहिए। भगवान के सामने खड़े होकर के हम रोज बोले अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखो को कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्जम। हे जनेंद्र देव, आपके समान गुणों की संपत्ति हमें भी प्राप्त हो, यही मंगल भावना बार बार आपके श्री चरणों में किया करते हैं। इस प्रकार से यह बोधि दुर्लभ अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। उस दुर्लभता को हम सब प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी को जय जनेन्द्र। आइए मां जनवाणी की स्तुति करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है, चाहो द्रव्य जान वे
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे। જય જિનેન્દ્ર ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર ટ્રસ્ટ દ્વારા યુટ્યુબના માધ્યમથી 42 દિવસ ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર ધાર્મિક ક્લાસ અને સ્વાધ્યાયનો લાભ આપ સૌ મેળવી રહેલ છો। ઉપરોક્ત અમારા પ્રયત્નને પ્રોત્સાહન આપવા જ્ઞાનદાન પેટે અગાઉ મળેલ દાન રાશિથી પ્રેરિત થઈ ધાર્મિક ક્લાસ અને સ્વાધ્યાયના હેતુ માટે બીજી નીચે મુજબની દાન રાશિ મળેલ છે। તરુણભાઈ ચિમનલાલ શેઠ વડોદરા તરફથી 11,000 રૂપિયા, ચંપાબેન ચંદુલાલ શાહ બાલીસણા હાલ કાંદીવલી તરફથી 1100 રૂપિયા, પુષ્પાબેન રમેશભાઈ શાહ વડાસણા હાલ ભાયંદર તરફથી 1100 રૂપિયા, સ્વશ્રી સુભદ્રાબેન રસિકલાલ શાહ અમદાવાદ તરફથી 501 રૂપિયા। ટ્રસ્ટ તથા સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। દાન રાશિ આવકાર્ય છે। રોજ પ્રવચન ચાલુ થાય ત્યારે ફોનમાં નોટિફિકેશન આવે તે માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો। ચેનલની સાથે 42 DS ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિરનું ફેસબુક પેજ બનાવેલ છે। ભવિષ્યમાં સંસ્થા સાથે જોડાઈ રહેવા અને બધી ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા આ પેજને લાઇક અને ફોલો કરો। બીજાને પણ આ પ્રોગ્રામની જાણ કરી જોડાવા પ્રેરિત કરવા વિનંતી। આપણી યુટ્યુબ ચેનલ 42 DS ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પ્રસારિત થનાર 12 ભાવના પરનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી તારીખ 3/6/2020ના રોજ ઓનલાઈન ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। પ્રશ્નપત્ર માટેના ફોર્મની લિંક ફેસબુક પેજ અને યુટ્યુબના માધ્યમથી દરેકને મળી રહેશે। પ્રશ્નપત્ર તારીખ 6/6/2020 સુધી જમા કરાવવાનું રહેશે। પ્રશ્નપત્રમાં 50 પ્રશ્નો હશે। દરેક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ રહેશે। પ્રશ્નપત્રમાં દરેક પ્રશ્નોના વૈકલ્પિક જવાબ આપવાના છે। પ્રશ્નના જવાબ ફરજિયાત આપવાના રહેશે। પ્રશ્નપત્રને સબમિટ કર્યા બાદ તરત જ 100માંથી કેટલા માર્ક્સ મળેલ છે તે તમને જોવા મળશે। પ્રથમ 21 નંબર આવેલા પ્રતિસ્પર્ધીઓને સંસ્થા તરફથી ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે। બાકીના પ્રતિસ્પર્ધકો પોતાના પોઈન્ટ્સ જાતે જ જોઈ શકશે। માત્ર 21 પ્રતિસ્પર્ધકોના નામ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે। આ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા સમાજના દરેક સભ્યોને વિનંતી છે અને બીજાને પણ ક્વિઝમાં ભાગ લેવા પ્રેરિત કરવા વિનંતી।